آج جو جمعے میں ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ نیک عمل کرنے کی برکتیں اور ضمناً برا عمل کرنے کے کیا وبال ہے۔ بندہ نیکی کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے کیسی جزائیں عطا فرماتا ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، فرمائے کہ مردوں اور عورتوں میں سے جس نے بھی نیک عمل کیا، اور آگے فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان کی حالت میں، اس حالت میں کہ وہ مومن ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایمان کی حالت میں عمل صالح کیا، نیک عمل کیا، رب کائنات فرماتے اس کی جزا کیا ہے؟ فرمائے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس بندہ مومن کو، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، ہم اسے حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ اب مفسرین نے اس حیات طیبہ کی تفسیر میں فرمایا، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا قول، فرمایا کہ وہ حیات طیبہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہی المعرفۃ باللہ، وہ اللہ تبارک و تعالی کی پہچان، اللہ تبارک و تعالی کی معرفت ہے۔ تو گویا کہ اب آیت کا ترجمہ یہ بن گیا کہ کوئی بھی مرد مومن یا عورت مومنہ ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس نیک عمل کے بدلے اپنی معرفت عطا فرمائے گا۔ اور بعض مفسرین نے یوں فرمایا کہ حیات طیبہ جو قرآن نے فرمایا اس کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ یأکل حلالا و یلبس حلالا، کہ وہ حلال کھائے گا اور حلال وہ پہنے گا، یہ ہے حیات طیبہ۔ اب آیت کا ترجمہ کیا بن گیا کہ مرد مومن اور مومنہ عورت جو بھی نیک عمل بجا لائے، اللہ تعالیٰ اس کو حیات طیبہ دے گا کہ وہ حلال کھائے گا، حلال پہنے گا۔ اور بزرگ فرماتے ہیں اگر حلال غذا کا ایک لقمہ، جب انسان پہلا لقمہ کھاتا ہے حلال غذا کا، اس کے پیٹ میں پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، یہ ہے نیک عمل کا جزا۔ اور بعض مفسرین نے اس حیات طیبہ جو قرآن نے فرمایا ہم نیک عمل کے بدلے حیات طیبہ دیں گے، فرمایا کہ اس کی ایک تفسیر یہ ہے، قال شریک، امام شریک رحمت اللہ نے کیا فرمایا، یا حیات فی البرزخ قد جال قبر روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا کہ وہ بندہ جس نے ساری زندگی، بندہ مومن ہو یا مومنہ عورت ہو، نیک عمل کیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قبر کے اندر اس کی قبر کو جنت باغوں میں سے باغ بنا دے گی۔ یہ ہے حیات طیبہ۔ تو اب آیت کا ترجمہ کیا بن گیا کہ من عامل عملا صالحا، کہ جس نے بھی نیک عمل کیا، من ذکر و انثی، مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان کی حالت میں کیا، فرمایا کہ فَلِنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے حیات طیبہ دیں گے، یعنی اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیں گے۔ تو یہ حیات طیبہ، نیک عمل کرنے کی جزا دیکھیے۔ کہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے نیک عمل کرنے سے، کہیں نیک عمل کرنے سے بندہ حلال کھانے کی اسے توفیق ہوتی ہے، کہیں نیک عمل کرنے سے بندے کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے۔ اب دیکھیے اگلی آیت میں نیک عمل کرنے کی جزا کیا لکھی۔ رب کائنات نے فرمایا
वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। ऐ प्यारे हबीब, आप उन लोगों को बुशारत दे दें कि जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किया, उनकी जजा क्या है, किस चीज की बिशारत है। फरमाए कि अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार, फरमाए कि इनके लिए ऐसी बागात, ऐसी जन्नतें हैं जिनके तहत नहरें बहती हैं। ईमान लाने के बाद फरमाए कि वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, ईमान लाए फिर अमल साले किया, फरमाए कि इनके लिए जन्नतें हैं जहां नहरें बहती। यह है नेक अमल की जजा। और आप देखिए पहली आयत के अंदर भी वह मुअमिन कह के ईमान की कैद लगाई, और इस आयत करीम में फरमाया बशरिल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, यहां पर भी ईमान की कैद लगाई। अगली आयत में क्या फरमाया रब कायनात ने, जो नेक अमल बजा लाए, जो नेक अमल बजा लाए उसकी क्या कैद लगाई। फरमाया कि वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, अल्लाह तबारक व तआला ने वादा कर लिया, वअदल्लाहु, अल्लाह ने वादा कर लिया उन लोगों से, अल्लज़ीन आमन, जो ईमान लेकर आए, वो आमिलुस सालिहात, और फिर नेक अमल किए। अच्छा, किस चीज का वादा किया नेक अमल के बदले। फरमाया कि व मिनहुम मग़फ़िरतुन व अज्र अज़ीमा, उनके लिए मग़फ़िरत भी है, अज्र अजीम भी है। ये नेक अमल के बदले है। अब इस आयत करीमा भी देखिए ईमान की कैद लगाई है। ईमान लाए, ईमान लाने के बाद अमल साले किया तो उसको जज़ा क्या, उसके लिए मग़फ़िरत भी है, अज्र अजीम भी है। और अगली आयत में क्या फरमाया, वल असर, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, फरमाए कि तमाम लोग खसारे में हैं। इन्नल इंसान लफी खुस्र, तमाम लोग खसारे में है, लेकिन फरमाए कि इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, लेकिन सिवाय उन लोगों के जो ईमान लेकर आए और अमल साले किया, और क्या करते रहे, व तवासौ बिल हक, एक दूसरे को हक बात की तलकीन करते रहे, व तवासौ बिल सब्र, एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते रहे। फरमाया ये लोग खसारे में नहीं, ईमान लाए, अमल साले किया और उसके अमल साले भी करते रहे, एक दूसरे हक बात की तलकीन करते रहे, सब्र कितनी करते, फरमाया ये लोग खसारे में नहीं है। वैसे फरमाए कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे में है। तो नेक अमल के सदके इंसान खसारे से बाहर। अब जो बात समझा रहा था कि इस आयत करीमा के अंदर भी ईमान की कैद है, और अगली जो पहले आयत करीमा मैंने सब में ईमान की कैद, उसके बाद अमल साले। ये ज़हन में रखे कि ईमान, ये आमाल की कबूलियत का दारो मदार ये ईमान पर है, और ईमान का ताल्लुक अकीदे से है। अब ईमान है क्या, अब जहां भी अमल नेकी साले की शर्त लगाई उससे पहले ईमान। अगर ईमान नहीं होगा तो अमल साले इंसान सारी जिंदगी करता रहे तो उसे दुनिया में हो सकता है अल्लाह ताला से उम्मीद है कुछ जजा दे दे, लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं बगैर ईमान के। ईमान तमाम अमाल के लिए बुनियाद है। अब ईमान है क्या, वक्तन फवक्त मैं तवज्जो दिलाता रहता हूं इस पर, ईमान है क्या। ईमान यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत के इकरार के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला को एक मानने के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल से तस्दीक करना, और आप जो अपने साथ अहकाम लेकर आए उसको मानने का नाम ईमान है। और ये देखें कि ईमान के बगैर सिर्फ ये तौहीद ये भी काबिल कबूल नहीं। ईमान है दर हकीकत अल्लाह को एक मानने के साथ साथ नबी की दिल से तस्दीक करना, और आप जो अहकाम लेकर उसको मानने का नाम ईमान है। मोमिन बंदा होगा तो उसका हर अमल काबिल कबूल है। अगर ईमान से खाली होकर अमल करेंगे, दुनिया में हो सकता अल्लाह ताला कोई जजा उसके बदले में दे दे उसको, लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं है।
अब बात ये चल रही थी अमल साले का बदला। बंदा नेक अमल करता है, अल्लाह ताला नेक अमल के बदले उसे क्या अता फरमाता है। और इसके बरस अगर बंदा बदी करे, इंसान तो इंसान, जानवर पर भी इंसान जुल्म करे ना, जुल्म जानवर पर भी, इस्लाम ने वो भी रवा नहीं रखा। रिवायतों में आते खातून ने बिल्ली पाली हुई थी। वैसे घरों में जानवर पालने की शरन इजाजत है, बिल्ली पाल लें आप परिंदे पालना चाहते हो, कबूतर वगैरह तोते पाल लें, लेकिन कहा कि दिन में उनके सामने 70 दफा खाना पेश करें फिर पाले। अब उनके बंदा खाना भी ना दे, पीना भी तो शौक है पालने का, वो तुम्हारे गले का अजाब बन जाएंगे। अब वो खातून ने बिल्ली तो पाली हुई थी और ये सोचकर शाम को मैंने आई जाना है, बिल्ली को बांध कर चली गई। यहां तक कि किसी सबब से 3 दिन तक ना आ सकी। आए तो वो बिल्ली मर गई। रवायतों में आते क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उस बिल्ली को उस खातून के ऊपर मुसल्लत करेगा जो उसको नोच नोच कर खाएगी। ये मैं बता रहा हूं कि बदी और बुराई, इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, अगर किसी जानवर पर भी अगर उसके साथ भी बदसलूकी की जाए, जुल्म किया जाए, तो अल्लाह ताला ने, इस्लाम ने वो भी रवा नहीं रखी। तो बात थी कि इंसान नेक अमल करता है दुनिया में तो अल्लाह ताला उसको जजा देता है। हदीस पाक के अंदर तवील वो वाक़या आपने सुना कि 3 शख्स सफर पर जा रहे थे, रास्ते ने आंधी तूफान बारिश ने आ लिया, तो उन्होंने एक गार देखी और गार के अंदर अपनी पनाह ले ली बारिश से, तूफान से बचने के लिए। अब तूफान के में इतना बड़ा पत्थर आकर गिरा उनके गार के सामने और उसने गार के दरवाजे को बंद कर दिया। उन्होंने बारिश टलने के बाद, तूफान खत्म होने के बाद पत्थर को हटाने की कोशिश की तीनों ने, लेकिन इतना वजनी था वो उसे 1 इंच भी हिला ना सके। अब उन्होंने ये ख्याल किया आज हमारी इसी गार में हलाकत होगी, लेकिन किसी ने कहा ऐसा करो, अगर अपने अपने नेक अमाल को याद करो, अगर तुमने कोई नेक अमल किया हो उस नेक अमल को याद करो और उसके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह ताला उस नेक अमल की बरकत से हो सकता है हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमा दे। अब उनमें से एक शख्स कहने लगा, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ बारी ताला, मैं चरवाहा हूं, मैं बकरियां चराता हूं और शाम को जब मैं घर आता हूं और मेरे घर के अंदर मेरे वालिदैन हैं, बीवी है, बच्चे हैं, मैं जब घर पहुंचकर बकरियों का दूध धोता हूं और दूध धोने के बाद मैं सबसे पहले अपने वालिदैन की खिदमत में पेश करता हूं, उन्हें दूध पेश करके फिर मैं अपनी औलाद को और अपनी जोजा को पेश करता हूं। और एक वजह से, क्या सबब से, मैं बकरी को चराते चराते चरागाह की तलाश में दूर निकल गया, यहां तक कि मुझे वापसी पर देर हो गई, रात गए देर में वापसी आया, मेरे वालिदैन सो गए थे। अब दूध धोया, अब दूध धोने के बाद अब एक तरफ तो ये था वो सो रहे हैं, जगाऊं तो उनकी नींद में खलल ना पड़ जाए, और अगर अपने बीवी बच्चों को पिलाता हूं तो फिर उनसे वालिदैन से पहल करना लाजिम आ जाएगा, ये भी गवारा नहीं, नींद से जगाना भी गवारा नहीं। दूध लेकर वालिदैन के सराहने खड़ा रहा, यहां तक कि इनकी आंख खुले, यहां तक कि सुबह हो गई। जब आंख खुली फिर दूध पेश किया, ऐ बारी ताला, ये अमल खालिसतन मैंने तेरी रिजा के लिए किया था, बारी ताला का ये मेरा अमल तेरी बारगाह में कबूल है, तो हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमा। ये कहना था, पत्थर कुछ थोड़ा सा सरक गया। यह है नेक अमल का बदला। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया, बंदा आने वाली आफात बिला से बच गया। तो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक जब दुनिया में इंसान को आने वाली आफात बिला से बचाती है, वहीं पर इंसान के लिए आखिरत में वालिदैन की खिदमत जन्नत है।